So good morning students. We are studying unit number 5 of the subject manufacturing process, that is on machining. In the machining chapter we have studied lathe machine and the operations performed on lathe machine. In this lecture I am going to give you the brief introduction about milling machine and the milling operations. So do you remember how machining takes place on lathe machine? In case of the operations to be performed on lathe machine, workpiece is mounted on the headstock and it is given rotary motion. Tool is mounted on the tool post which is provided over carriage and it is given motion in the linear direction that can be either along the axis of the workpiece or at an angle to the workpiece or perpendicular to axis of the workpiece. Okay. So in today's lecture, I am going to give you the brief introduction about milling and milling operations. Okay. So milling operation is the operation in which a workpiece is fed past or moved past against a rotating milling cutter. This milling cutter is somewhat different than the tool used in lathe machine. In lathe machine, the tool used is a single point cutting tool and it is given linear motion. In this case, in this figure, you can see that milling cutter is a rotary cutter. It is having various multiple cutting edges on its periphery. It rotates about its own axis. Each and every cutting edge provided on its periphery takes part in the machining, and it is the workpiece uh, which is moved past against this rotating milling cutter. So milling is the machining operation where we use a rotary milling cutter. The workpiece is fed past a rotating milling machine. Milling uses a multi-point cutting tool known as milling cutter. So the tool used on the milling machine is known as milling cutter. The axis of milling cutter can be in horizontal position or it can be in vertical position also. So two figures you are seeing this slide. In this figure, the axis of milling cutter is in horizontal position. Workpiece is moving from left to right. In this figure, the axis of milling cutter is in vertical position. Similarly, workpiece can be moved either from left to right or right to left. अब इसमें मशीनिंग कैसे होती होगी तो इसको अपन को समझना है. I told you that there are three important machining parameters, that is cutting speed, feed and depth of cut. In milling operation, the cutting motion is the rotation of the workpiece. Cutting motion is the rotation of the milling cutter. If this milling cutter does not rotate, then machining will not take place. Okay? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि हम इस मिलिंग कटर को रोटेट नहीं करेंगे तो मशीनिंग नहीं होगी. दैट्स व्हाई इट इज द प्राइमरी मोशन इन केस ऑफ मिलिंग ऑपरेशन. मिलिंग ऑपरेशन में ये मिलिंग कटर रोटेट करेगा. रोटेट करने के बाद हम वर्कपीस को ऊपर उठाएंगे. ऊपर उठाने के बाद रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ कट लेंगे. दैट कैन बी 1 mm, 1.5 mm, 2 mm depending upon our requirement, and then workpiece will be given feed motion. So this rotation of the milling cutter is the primary motion or the cutting speed, and the movement of the workpiece from left to right is the feed motion of the workpiece. Third thing or the important parameter is depth of cut. तो इस केस में आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पोर्शन वर्कपीस का मशीन हो रहा है, तो ये डेप्थ ऑफ कट हमने दी हुई है. और ये कैसे दी गई है? इट कैन बी गिवन बाय मूविंग द वर्कपीस इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसका हम इसको लॉक कर देते हैं और फिर लेफ्ट टू राइट मूव कराते हैं. तो डेप्थ ऑफ कट देने के बाद जब हमें देख लेते हैं कि मिलिंग कटर के जो कटिंग एजेस होते हैं वो वर्कपीस के अंदर बाइट करेंगे या कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम वर्कपीस को फीड मोशन देते हैं. ठीक है. बाय मिलिंग मशीन we can perform or we can generate flat surfaces lying at an angle. We can produce or machine irregular surfaces also. We can make a hole. We can cut gear.
and produce slots on the milling machine. इसी वजह से क्या होता है, जो मिलिंग मशीन होती है, दैट मिलिंग मशीन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वर्सेटाइल मशीन्स. जितनी भी मशीन टूल्स हमारी हैं मशीनिंग के लिए, उन सभी में सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल जो मशीन होती है दैट इज कंसिडर्ड एज मिलिंग मशीन. मशीनिंग कैसे हो रही है अपन फिर से एक बार समझते हैं. ये जो मिलिंग कटर है, दिस कटर इज गिवन रोटरी मोशन, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहेगा. वन मोर थिंग, इन विच डायरेक्शन दिस मिलिंग कटर शुड रोटेट. तो होता है कि जो कटिंग एज होते हैं वो स्टिप पे होते हैं, ठीक है ना, और पीछे की सरफेस को हल्का सा हम रिलीव कर देते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं, जिससे कि ये इस कटिंग एज का कोई भी पोर्शन मशीन सरफेस से टच ना करे. तो कटिंग एज इस डायरेक्शन में यहाँ पे बनी हुई है. अब यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, देन ओनली इट विल बी एबल टू परफॉर्म मशीनिंग ऑपरेशन. इफ वी mount this milling cutter on the milling machine and rotate it in anti-clockwise direction, then machining will not take place. ठीक है ना. तो ये जरूरी होता है कि किस डायरेक्शन में वहां पे कटिंग एजेस हैं, ठीक है ना, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें मिलिंग कटर को रोटेट करना पड़ता है. तो ये हो जाती है प्राइमरी मोशन, या इसको अपन बोल सकते हैं कटिंग स्पीड. अब इसके बाद हमें वर्क पीस को ऊपर उठा के डेप्थ ऑफ कट लेना है. डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड फीड मोशन टू द वर्क पीस. तो ये तीनों पैरामीटर सभी मशीनिंग ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट होंगे. कटिंग कोई डाउट है यहाँ पे आप लोगों को? हेलो बेटे, पहली स्लाइड समझ में आ गई आप लोगों को? सर एनी डाउट? आगे चलते हैं अपन. नाउ टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस और the operations performed on milling machine. I have shown you two types of figures. Once again, I am considering those two figures. These two figures are the same. The only difference lies in the movement of the workpiece. In first case, the workpiece is moving from left to right, but in this second case, it is moving from right to left. So because of this change in the direction of movement of the workpiece, the nature of cut changes, and some differences are there, which I will discuss you after some time. But first of all, we have to consider these two types of operations. This is the case where cutting edges are provided on its periphery, and this milling cutter is in the form of a cylindrical disc. Okay, and this type of cutting is known as peripheral milling. Okay, in this case, you can see this is the machined surface which is lying in horizontal plane, and this is the position of axis of the rotating milling cutter. It is also in horizontal position. So we can say in this case, the surface generated is parallel to the axis of rotating milling cutter. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Anybody? समझ में आ रहा आप सभी को? भविष्य रोल नंबर 27 समझ में आ रहा है बेटा? जी सर, जी सर. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी सर. ठीक है. सेकेंड केस इज ऑफ फेस मिलिंग. अब इसमें भी आप बोल सकते हो कि इसकी पेरिफेरी पे कटिंग एजेस होते हैं. तो मैं आपके दोनों मिलिंग कटर अलग प्रकार से बाद में दिखाऊंगा. बट इस केस में क्या हो रहा है कि द एक्सिस ऑफ रोटेटिंग मिलिंग कटर इज इन वर्टिकल पोजीशन and the surface which is being machined is lying in horizontal plane. That means these two directions, the direction of rotation of milling cutter, it is vertical, and the surface generated, it is in horizontal. That's why these two are in at 90 degree to each other. So in this case, in the first case, the surface generated is parallel to the axis of rotating milling cutter, whereas in this case, the surface generated is at 90 degree to the axis of milling cutter. This is the case of face milling, and these two are the cases of
पेरिफेरल मिलिंग। पेरिफेरल मिलिंग में जो सरफेस जनरेट होती है और जो मिलिंग कटर है उसका एक्सेस दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। और जिस केस में एक्सेस ऑफ रोटेटिंग मिलिंग कटर and the surface generated both are lying at 90 degree, that is the case of face milling। तो यहाँ पे अपन को ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, ठीक है ना। नॉर्मली दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल मिलिंग एंड दिस टू आर द केसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल मिलिंग। अब इसमें किसको हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग बोलेंगे और किसको वर्टिकल मिलिंग बोलेंगे, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेटिंग मिलिंग कटर, ठीक है ना। इन दिस केस यू कैन सी the axis of milling cutter is in vertical position, that's why this is the case of vertical milling. In this case the position of axis of milling cutter is in horizontal, that's why this is the case of horizontal milling, ठीक है ना। तो यदि कोई मिलिंग कटर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस मशीन कर रहा है तो वो पेरिफेरल मिलिंग है। ऑन द अदर हैंड दूसरे प्रकार से अपन बात करते हैं, यदि एक्सिस ऑफ मिलिंग कटर इज इन वर्टिकल पोजीशन एंड इट इज आल्सो जनरेटिंग वर्टिकल सरफेस, देन आल्सो इट इज पेरिफेरल मिलिंग। ये ध्यान रखना बिल्कुल से, यदि मिलिंग कटर का एक्सिस वर्टिकल पोजीशन में है और वो मिलिंग कटर वर्टिकल सरफेस जनरेट कर रहा है तो वो भी पेरिफेरल मिलिंग ही है, ओके। जिस भी केस में मिलिंग कटर का एक्सिस और सरफेस जनरेटेड एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगी उसको अपन बोलेंगे फेस मिलिंग, ठीक है ना। So normally this is the case of vertical milling and this is also an example of face milling. These two are the cases of peripheral milling or horizontal milling also. So it is written here that peripheral milling is a machining process. The machined surface is parallel to the axis of milling cutter. The milling cutter is positioned so that the sides of the cutter removes material from the top of the workpiece, ठीक है ना। अब ये दो अलग अलग केस आपको देख रहे होंगे जिसमें कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मिलिंग कटर दैट इज ऑलवेज क्लॉकवाइज और वर्कपीस इज मूविंग फ्रॉम, इन दिस केस इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन दिस केस इट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये दो अलग केस होंगे, ये कहलाता है अप मिलिंग और ये कहलाता है डाउन मिलिंग, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यदि हमें माने कि इसकी सरफेस स्पीड कंसीडर करें किसकी, मिलिंग कटर की, तो इसका एक जो कटिंग एज होगा, ये कटिंग एज ऐसा मूव होता, मतलब ऐसा अपन को फील होता है कि इट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, ठीक है। इधर से इधर आ रहा है मतलब इट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, whereas workpiece is moving from left to right. So these two moves in opposite direction we can say. मिलिंग कटर का रोटेशन और वर्कपीस का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं अप मिलिंग या कन्वेंशनल मिलिंग। दिस इज आल्सो नोन एज कन्वेंशनल मिलिंग। इस केस में क्या हो रहा है, जो मिलिंग कटर है इसका कटिंग एज मूव हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड वर्कपीस इज आल्सो मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दिस केस इज नोन एज डाउन मिलिंग। This is also known as climb milling, CLIMB. This is the case of climb milling and this is the case of conventional milling. In case of face milling, it is the machining process in which the axis of milling cutter is perpendicular to the workpiece. Workpiece के perpendicular है. The milling cutter is positioned face down towards the top of the workpiece. ठीक है? When engaged, the tip of the milling cutter removes material from top of the workpiece. ठीक है? So this is the brief introduction about these two types of milling operations, peripheral milling and face milling. अब कोई सा भी ऑपरेशन अपन जो कराएंगे वो इन दोनों में से किसी एक प्रकार का यहाँ पे होगा। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं। सर अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में सर जो वर्कपीस पे लेफ्ट टू राइट था वो सर एक बार और समझा दीजिए सर। देखो सबसे पहले अपन को फिक्स करना है कि जो कटर रहेगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। इसमें कटिंग एज इधर है पीछे की तरफ। अब यदि अपन इसको उल्टा घुमाएंगे रोटेट कराएंगे तो ये मशीनिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, मिलिंग कटर का रोटेशन फिक्स किया। इस केस में ऐसा कटिंग एज की पोजीशन ऐसी है कि इसको हमें क्लॉकवाइज ही मूव करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, तो रोटेशन हमने कर लिया। वर्कपीस को फीड करने के दो तरीके हमारे पास हैं कि इस केस में ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, इस केस में ऐसा लगता है कि ये राइट टू लेफ्ट मूव हो रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है,
जो वर्क पीस रहता है वो एक टेबल के ऊपर सुइटेबल वर्क होल्डिंग डिवाइस में माउंट होता है और टेबल को अपन ऐसे मूव करा देते हैं, जब पूरी मशीनिंग हो जाती है तो यहाँ से ऊपर डेप्थ ऑफ पार्ट लेके फिर ऐसा भी मूव कराते हैं। अब इसमें अंतर ये आता है कि जो अप मिलिंग का केस है या जिसको अपन कन्वेंशनल मिलिंग भी बोलते हैं, उसमें कटर का मूवमेंट और वर्क पीस का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो रहा है, देखो वर्क पीस मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो क्लियर है, ठीक है। और जो मिलिंग कटर है उसके कटिंग एज मूव हो रहा है राइट टू लेफ्ट, तो दोनों का मूवमेंट कैसा होगा, एक दूसरे के अपोजिट। इस केस को यदि हम कंसीडर करते हैं तो इसमें वर्क पीस मूव हो रहा है राइट टू लेफ्ट और मिलिंग कटर के जो कटिंग एजेस हैं वो भी कैसे मूव हो रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, सो बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। इसकी वजह से हमने अब चूंकि इनमें डिफरेंस आ गया इसलिए इसको हमने नाम दे दिया अप मिलिंग या कन्वेंशनल मिलिंग, इसको नाम दे दिया हमने डाउन मिलिंग या क्लाइंब मिलिंग, ठीक है ना। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है, वो अंतर मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा ऊपर की चीज हो जाएगी। अभी सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि ये जो केस है ये पेरिफेरल मिलिंग का केस है और ये फेस मिलिंग का केस है। फेस मिलिंग अपन इस ऑपरेशन को बोलेंगे जिसमें मिलिंग कटर का एक्सिस और जो मशीन्ड सरफेस है जो जनरेट हो रही है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, जैसे ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। जबकि पेरिफेरल मिलिंग चाहे वो अप मिलिंग का केस हो या डाउन मिलिंग का केस हो, इसमें वर्क सरफेस ये हॉरिजॉन्टल है दोनों केस में और मिलिंग कटर का एक्सिस भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, इसलिए पेरिफेरल मिलिंग का केस है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि क्या ये पेरिफेरल मिलिंग है या फेस मिलिंग है। तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। आगे चलते हैं अपन। Now you can see various types of milling cutters. I have shown you here. These are the cutters mounted on horizontal milling machine, or we can say the axis of these milling cutters remains in horizontal position. तो ये स्लैब मिलिंग के लिए स्लैब मिल है जो कि फ्लैट सरफेस मशीन करेगा। ये सरफेस जब मशीन करता है इसमें पेरिफेरी में भी कटिंग एजेस होते हैं और साइड में भी यहाँ पे कटिंग एज, दोनों तरफ कटिंग एजेस होते हैं, ठीक है ना। तो दिस दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइड एंड फेस मिलिंग कटर। और ये इसमें ये जो कटिंग एज हैं ये कोई स्पेशल शेप के हो सकते हैं, ये सेमी सर्कुलर हो सकते हैं, एंगुलर हो सकते हैं, किसी और फॉर्म के हो सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्म कटर। बट ये तीनों प्रकार के जो कटिंग मिलिंग कटर हैं इनको अपन को हॉरिजॉन्टल मशीन पर माउंट करना पड़ेगा और वी कैन से द एक्सिस ऑफ दीज मिलिंग कटर्स विल रिमेन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यहाँ पे आपको एक स्लिटिंग शॉ दिख रही होगी, ये स्लिटिंग शॉ इसी प्रकार की होती है, इसमें कटिंग एजेस सिर्फ इसकी पेरिफेरी पे होते हैं और ये स्लिटिंग शॉ हॉरिजॉन्टल मशीन पे माउंट की जाती है और ये वर्कपीस के 2 या 2 से अधिक टुकड़े करने में काम आती है। मतलब इससे हम वर्कपीस को आसानी से 2 या 2 से अधिक पीसेस में कट कर सकते हैं। बाकी की जो 2 फिगर आप देख रहे होगे यहाँ पे इमेज देख रहे होगे, ये एक एंड मिल है और ये फेस मिलिंग कटर है। एंड मिल कुछ ड्रिल बिट जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस रहता है। डिफरेंस ये रहता है कि एंड मिल की जो टिप होती है वो यहाँ पे गायब है, जबकि ड्रिल बिट में यहाँ पे टिप होती है। एंड मिल में यहाँ पे डेफिनेट कटिंग एजेस होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। इससे हम मतलब जब ये वर्टिकली माउंट किया जाएगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम यहाँ पे इसीलिए मशीन कर सकते हैं। सो दिस इज यूज फॉर फेस मिलिंग और जैसा इसका नाम लिखा हुआ है इन दोनों फिगर का, ये फेस मिलिंग कटर ही है। तो इसमें हम इन एजेस से जो नीचे यहाँ पे होंगे उनसे हम मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये पेरिफेरल मिलिंग के काम में आएंगे और ये दोनों फेस मिलिंग के काम में आएंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर एंड मिलिंग और आपने एक और बताया सर वो ड्रिल बिट, सर दोनों में अंतर बताया था। यहाँ पे आपको नीचे देखो चार कटिंग एज दिख रहे होंगे, ये देख रहे हैं ना, 1 2 3 4। तो ये ऐसे मल्टीपल कटिंग एजेस होते हैं और इसको हम वर्टिकली माउंट करते हैं, ये ऊपर लगा रहेगा, रोटेट करेगा और नीचे की हॉरिजॉन्टल सरफेस को अपन मशीन करा पाएंगे। यदि ड्रिल बिट ये होता तो ड्रिल बिट यहाँ पे एक कॉनिकल पोर्शन होता है, एक टिप आती है यहाँ पे, ठीक है ना, टिप कॉनिकल शेप की होती है, वो एक पॉइंट पर रेस्ट करती है, फिर हम उसको रोटेट करते हैं और वो नीचे वर्कपीस के अंदर जाता है और फिर मशीनिंग करता है, उसमें वो होल ड्रिल करता है। तो वो फ्लैट सरफेस मशीन नहीं कर पाता है। तो ये बेसिक अंतर होता है एंड मिल कटर में और ड्रिल बिट में, ठीक है ना। और ये फेस मिलिंग कटर है, इसमें ये नीचे जो कटिंग एजेस आपको देख, एक्चुअली इसमें क्या आपको कुछ पीली येलो कलर के आपको कटिंग एजेस दिख रहे होंगे। बेसिकली ये इंसर्ट्स हैं जो कि हमने कटर पे माउंट किए हुए हैं। इसमें भी ये इंसर्ट्स हैं, लेकिन एक वहाँ पे ब्रेजिंग के द्वारा माउंट किए गए हैं, यहाँ पे क्लैंपिंग के द्वारा लगा, एक क्लैंप आपको दिख रहा होगा, नट हल्का सा दिख रहा होगा, तो इसमें हमने क्लैंप किया हुआ, नट के थ्रू इसको लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें ये कटिंग एजेस नीचे की तरफ होते हैं,
तो जब हम वर्टिकली इसको उल्टा लगाएंगे तो फ्लैट सरफेस को यहाँ पर मशीन कर पाएंगे। तो ये दोनों फेस मिलिंग के केस हैं और ये अपना पेरिफेरल मिलिंग के लिए काम में आते हैं। सर और ये सिलेटिंग मतलब स्लैब मिल कट कैसे करने में अप्लाई काम। करते हैं? क्या बेटा? सर ये स्लैब मिल कैसे यूज करते हैं? स्लैब मिल को अभी अपन मशीन बता रहा हूँ, तो ये इसके अंदर देखो आपको ये होल दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ यस पे सर। दिख रहा होगा। तो इसको अपन लगाते हैं, उसको बोलते हैं आर्बर। ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पे वो पार्ट जो मिलिंग कटर को रोटेट करने में आता है वो कहलाता है आर्बर, ठीक है। तो आर्बर के ऊपर अपन इसको रोटेट माउंट कर देते हैं, ये लॉक हो जाता है की में, इसके बाद रोटेट करता रहता है अपनी जगह पे। आर्बर में एक फायदा होता है कि एक आर्बर जो कि 1 फुट का लंबा भी हो सकता है, 2 फुट लंबा भी हो सकता है, उस पर एक साथ हम एक से अधिक मिलिंग कटर इस प्रकार के माउंट कर सकते हैं और वर्कपीस की पोजीशन चेंज कर करके एक ही साथ वर्कपीस के ऊपर एक से अधिक मिलिंग का ऑपरेशन वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्लैब मिल कटर उस पर अभी बताऊंगा आगे जाके मैं, ठीक है ना, उस पर माउंट होगा। और कोई डाउट? आगे चलते हैं अपन। नहीं, टाइप्स पहले एक मिलिंग मशीन का फिगर देखो फिर अपन टाइप समझते हैं। ये फिगर है एक मिलिंग मशीन का, ये आपको मैं दिखा देता हूँ आर, ठीक है ना, जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे, ये हमारा कटर है। तो ये जो कटर होता है इनका जो होल होता है, ठीक है ना, इस कटर को अपन कहाँ लगा देते हैं? आर्वर पर माउंट कर देते हैं। और स्पेसर्स इसलिए दिए गए हैं, ये कॉलर रहते हैं बेसिकली प्रकार से, ताकि जब हम मल्टीपल कटर एक आर्वर पे एक साथ माउंट करें तो उनके बीच में कुछ दूरी हो और प्रॉपर डिस्टेंस वहाँ पे होनी चाहिए, उसके लिए स्पेसर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। इसको अपन कॉलर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ये जो वर्कपीस यहाँ पे टेबल के ऊपर माउंटेड है, इस वर्कपीस के ऊपर एक साथ एक से अधिक मिलिंग कटर एक साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो ये मिलिंग मशीन आपको दिख रही होगी। मिलिंग मशीन में ये कॉलम है, ये नी लिखा गया है, तो ये कॉलम एंड नी टाइप की मिलिंग मशीन है। दूसरी मिलिंग मशीन भी यहाँ पे हो सकती हैं, बट यहाँ पे जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं कि वी हैव टू प्रोवाइड arrangement for holding and supporting the milling cutter as well as for holding and supporting the workpiece, number 1। तो मिलिंग कटर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे आर्वर है, यदि वर्टिकल हो जाएगी तो यहाँ पे स्पिंडल आ जाएगा, और जो वर्कपीस रहेगा दैट कैन बी होल्डेड एंड सपोर्टेड ऑन द टेबल, ठीक। इसके अलावा फिर इनको हमें मोशन प्रोवाइड करनी है। तो जो मिलिंग कटर रहेगा दैट विल बी गिवन रोटरी मोशन, आइदर इट इज आर्बर और स्पिंडल। ये हॉरिजॉन्टल होगा तो आर्बर है, वर्टिकल होगा तो स्पिंडल है। स्पिंडल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक स्पिंडल पे एट ए टाइम हम एक ही कटर माउंट कर सकते हैं, जैसा कि आपने ड्रिल मशीन के केस में देखा होगा, जैसे ड्रिल में माउंट होता है उसी प्रकार से यहाँ पे मिलिंग कटर भी माउंट होते हैं। बट ऑन एन आर्बर वी कैन माउंट मोर देन 1 नंबर ऑफ मिलिंग कटर, ठीक है ना। इसके अलावा जो जो वर्कपीस रहता है दैट इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द टेबल एंड इट कैन बी गिवन मूवमेंट इन 3 डायरेक्शंस। तो ये आपको जो एरो दिख रहा है इट इंडिकेट्स दैट कैन मूव इन वर्टिकली अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो वर्कपीस इसके ऊपर लगा हुआ वो भी अप एंड डाउन हो जाएगा। क्रॉस मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस दी गई जिसका नाम लिखा गया है सैडल। तो क्रॉस में ऐसे मूव होगा, और यहाँ पे ये जो छोटा रेक्टेंगल आपको देखा है दिस इज टेबल ऑफ द मशीन। दिस टेबल कैन बी मूव्ड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो 3 जो डायरेक्शंस होते हैं एक्स वाई जेड, आप चाहें तो लॉन्गिट्यूडनल वाले को एक्स काउंट करें, इसको वाई काउंट करें और इसको जेड काउंट करें, तो वर्कपीस का मूवमेंट तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना? यदि ये समझ में आ गया होगा तो अपन पिछली स्लाइड पे वापस चलते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। जो फिगर अपन ने अभी देखा था दिस वाज द फिगर ऑफ अ कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, ठीक। Another milling machine is there where this knee is not movable। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, तो उसको फिर क्या बोलने लग जाते हैं? फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन। कॉलम नी में क्या होता है, नी से हम वर्कपीस को अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड बेड टाइप की मिलिंग मशीन होगी उस मिलिंग मशीन में बेड फिक्स होगा, वो वर्टिकली ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। तो आपको जो मिलिंग कटर होगा उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा टू एडजस्ट टू शूट द हाइट ऑफ वेरियस वर्क पीसेस, ठीक है ना। प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन एक अलग प्रकार की मिलिंग मशीन है, ये आप अभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपने सेपर भी नहीं देखा, प्लेनर भी नहीं देखा है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन वो मशीन होती है जिसमें कि हम पहले से कोई एक प्री मशीन्ड वर्कपीस माउंट करते हैं और ट्रेस के द्वारा वर्कपीस उसके ट्रेस उस प्री मशीन्ड वर्कपीस के ऊपर ट्रेस करता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली कटिंग टूल यहाँ पे मूव करता रहता है या वर्कपीस यहाँ पर मूव करता रहता है। Special purpose milling machines are the milling machines which are used for performing specific operations like यदि हमारे पास एक गियर कटिंग मिलिंग मशीन है तो गियर कटर हो, गियर मिलिंग मशीन हो जाएगी। हमारे पास एक कैम कट करने के लिए मशीन है तो वो कैम मिलिंग मशीन वहाँ पे हो जाएगी। तो उनको अपन स्पेशल पर्पज मिलिंग मशीन बोलते हैं,
ठीक है ना। कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन बहुत कॉमन होती है, अधिकतर जगह आपको इसी टाइप की मिलिंग मशीन देखने को मिलेगी। अब इस केस में जो मिलिंग कटर है इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो ये कौन सी मशीन हो गई, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। मैं दूसरा केस आपको बताता हूँ। ये मिलिंग मशीन का स्पिंडल है, यहाँ पे माउंट नहीं है, यहाँ पे स्पिंडल माउंट हो जाएगा, उसमें अपन मिलिंग कटर माउंट करेंगे, तो इसका एक्सिस कैसा हो गया, वर्टिकल। दैट्स वाई यहाँ पे जो फिगर मैंने आपको दिखाया ये वर्टिकल मिलिंग मशीन है। लेकिन दोनों केस ये कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन की है। यू कैन सी कॉलम हियर, यू कैन सी नी आल्सो हियर, ठीक है, नी सैडल टेबल एंड द वर्क पीस। Similarly, in the previous case, you can see knee, saddle table, and the workpiece. So, column and knee type milling machines can be classified as horizontal and vertical according to the position of axis of milling cutter. अब इसी में क्या होता है, दो नाम और आ जाते हैं, एक कहलाता है यूनिवर्सल, एक कहलाता है ओमनिवर्सल। तो पहले तो ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कौन सी होती है, वर्टिकल मिलिंग मशीन कौन सी होती है, समझ में आ गया? तो अपन आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलो आगे चलते हैं। तो अपन ने यहाँ पे दो नाम और लिखे हैं, यूनिवर्सल एंड ओमनिवर्सल। तो होता क्या है कि चूंकि जैसे मिलिंग को बोला गया है, मिलिंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वर्सेटाइल मिलिंग मशीन टूल। ये सबसे वर्सेटाइल मशीन टूल होता है और इस पे किसी प्रकार के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। इवन बाय मेकिंग सुटेबल अरेंजमेंट, टर्निंग ऑपरेशंस कैन आल्सो बी डन, but it is somewhat difficult to perform a turning operation on a milling machine, but it can be done by using proper attachments arrangements. Okay, हम चाहें तो वर्कपीस को तिरछा कर दें, यहाँ पे स्लांट कर दें, क्योंकि यहाँ पे वर्कपीस कैसे माउंट किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पे एक मिलिंग वाइस होती है, कुछ फिक्सचर भी यहाँ पे हम माउंट कर सकते हैं जिसके द्वारा इस वर्कपीस को किसी भी ओरिएंटेशन में यहाँ पे माउंट किया जा सकता है। ठीक है। इन केस ऑफ वर्टिकल मिलिंग मशीन आपको ये ग्रेजुएशंस दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये इसलिए किया जाता है कि ये जो हेड रहता है वर्टिकल हेड, दिस कैन बी रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हल्का सा तिरछा ये इधर स्विvel किया जा सकता है। मतलब इस वर्टिकल मिलिंग कटर का एक्सिस एग्जैक्ट वर्टिकल ना होकर किसी एंगल पर हो सकता है। तो वर्कपीस को भी हम किसी ओरिएंटेशन माउंट कर सकते हैं, मिलिंग कटर को भी किसी ओरिएंटेशन में माउंट कर सकते हैं। तो उस प्रकार से फिर ये दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक होता है यूनिवर्सल और दूसरा होता है ओमनिवर्सल। ठीक है। यूनिवर्सल वो मशीन होती है जिसमें जो टेबल रहती है, टेबल फिर से ध्यान से सुनना, जो टेबल रहती है, दिस टेबल कैन बी स्विवल्ड इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। knee, saddle and table, these three are the important parts of milling machine. knee से हम vertically up and down movement देते हैं, saddle से वर्कपीस को क्रॉस में मूवमेंट देते हैं और टेबल से वर्कपीस को लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देते हैं। ठीक है ना। तो वर्कपीस कैन बी मूव्ड इन 3 डायरेक्शंस यूजिंग दिस नी असेंबली, वेयर नी, सैडल एंड टेबल यू कैन सी। अब क्या होता है, कई बार वर्कपीस को हमें ओरिएंटेशन चेंज करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब वर्कपीस मशीन हो तो तिरछा, हल्का सा तिरछा लग जाए इसके ऊपर, तो इस पूरी की पूरी सैडल टेबल को जो कि सैडल के ऊपर माउंट है, हम हल्का सा घुमा सकते हैं। एक्चुअली क्या रहता है, इस सैडल के ऊपर इसमें ग्रेजुएशंस रहते हैं जिसमें टेबल फिक्स होती है, उस टेबल को हम हल्का सा अपने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही स्विvel कर सकते हैं। स्विvel करने का मतलब होगा कि जो टेबल होगी इस सैडल के ऊपर हल्की सी इंक्लाइंड हो जाएगी, रहेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये तिरछी नहीं हो रही वर्कपीस। ठीक है ना। ये जैसे इधर है तो इधर खिसक किया जाएगी, ये वाला इधर है तो अंदर और चला जाएगा, या उल्टा कर सकते हैं, इसको हम इधर खिसका लेंगे और इस पोर्शन को इधर खिसका देंगे, रहेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में और टेबल सैडल के ऊपर ही माउंट रहेगी। तो इस प्रकार की मशीन जिसमें कि यहाँ पे स्विवेलिंग पॉसिबल हो टेबल की, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, नंबर 1। और दूसरा होता है कि उस मिलिंग मशीन को हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल मिलिंग मशीन ऑल्सो। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये वर्टिकल मिलिंग मशीन है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है। अब यदि अपन को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ओपन करेंगे, ओवर आर्म जो कि लॉक कर दी जाती है इसको यहाँ खिसका के पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ होल होते हैं जिसमें कि वर्टिकल मिलिंग मशीन अटैचमेंट ये लगाया जा सकता है। और जो यहाँ पे कुछ बेबल गियर का अरेंजमेंट रहता है जिससे
कि जो इसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इस शाफ्ट की, वो हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो जाती है। तो हम एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को वर्टिकल मिलिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मिलिंग मशीन जो जिसमें कि टेबल स्विvel करती है अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जिसमें कि हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को वर्टिकल मिलिंग मशीन में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कहलाती है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कि व्हाट इज अ यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। दूसरा आता है ओमनिवर्सल नाम। तो ओमनिवर्सल में क्या होता है, ये यूनिवर्सल से थोड़ा और उसका मॉडिफिकेशन है। भाई इसका मॉडिफिकेशन आया यूनिवर्सल, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं और यहाँ पर टेबल भी स्विvel हो रही है। ओमनिवर्सल में ये जो नी रहती है जो कि सिर्फ अप एंड डाउन मूव होती है, वो हल्की सी अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्विvel कर सकती है। ठीक है ना, तो और ये एडिट फीचर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक से अधिक वर्टिकल हेड हो सकते हैं। ठीक है ना, और उसको बोलते हैं अपन ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो नॉर्मली हमें यही पढ़ना है, यही हमारे कोर्स में अधिक से आती है, दो मशीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और जो कि होती कॉलर एंड टाइप मिलिंग मशीन। और फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन वो मिलिंग मशीन है जिसमें यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं। होता क्या है जब हम मिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो उस केस में जो कटर रहता है वो कटिंग फोर्स अप्लाई करता है वर्कपीस के ऊपर। ठीक है ना, ये वर्कपीस को अपनी जगह से लिफ्ट करने की कोशिश करता है, तो इस केस में कुछ वाइब्रेशन यहाँ पर डेवलप होते हैं, और वो वाइब्रेशन वर्कपीस के ऊपर जो डेवलप हो रहे होते हैं वो टेबल सैडल नी के थ्रू यहाँ पे नीचे ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इस केस में जब कई बार हम हैवी डेप्थ ऑफ कट लेते हैं तो उस केस में वर्कपीस रिफ्लेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी नी को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। सिर्फ वहाँ पे आपको शेडल मिलेगा देखने को और टेबल देखने को मिलेगी। वर्कपीस ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता है, लेकिन आपको अलग से अरेंजमेंट देना पड़ता है जिससे कि मिलिंग कटर ऊपर नीचे यहाँ पे हो सके। ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन। सिंगलेक्स का मतलब एक हेड होगा, डुप्लेक्स का मतलब दो हेड होंगे, ट्रिप्लेक्स का मतलब तीन हेड होंगे। अब हेड किसको बोलते हैं, तो जैसे ये सिंगल हेड मशीन है, यहाँ पे सिर्फ एक आर बार है और उस पर हम वर्कपीस माउंट कर सकते हैं, सॉरी कटर माउंट कर सकते हैं। ये सिंगल हेड मशीन है जिसमें कि एक स्पिंडल है। तो हमारी जो फिक्स बेड टाइप की मिलिंग मशीन होगी उसमें एक से अधिक ऐसे हेड्स यहाँ पे होंगे, जो हेड्स अलग अलग मिलिंग मोटर के द्वारा रोटेट होंगे, मतलब रोटेशन मूवमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और अलग अलग टूल्स वहाँ पर माउंट होंगे, और एक वर्कपीस के ऊपर एक से अधिक कटर जो कि अलग हेड्स में माउंट है उनके द्वारा अपन मशीन कर पाएंगे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं सिंगलेक्स मतलब एक हेड है, डुप्लेक्स यानी दो हेड है, और ट्रिप्लेक्स यानी तीन हेड है। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। यदि आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो अपन म्यूट करके पूछ सकते हो, अपने पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आगे तो अपन नहीं चल पाएंगे। सर ओमनिवर्सल एक बता दीजिए, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन एक प्रकार की हॉरिजॉन्टल, ओमनिवर्सल, हाँ तो पहले समझो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या है, टेबल आपके यहाँ पे स्विvel कर सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में सैडल के ऊपर, और इस हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को अपन वर्टिकल मिलिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्टिकल हेड आता है, उसको अपन माउंट करके यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को वर्टिकल मिलिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपग्रेडेशन हो गया हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का यूनिवर्सल के लिए। हमारे पास वर्कशॉप में जो है वो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है। ठीक है ना, अब ओमनिवर्सल क्या होगी, ओमनिवर्सल का मतलब है कि जो यूनिवर्सल है उसके ऊपर भी हल्का सा और मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो वो मॉडिफिकेशन क्या होता है कि जो नी रहती है जो स्लाइड कर रही है ऊपर नीचे, ये एक तो हॉरिजॉन्टल मूव करती है, ठीक है, और ये स्विvel भी कर सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, ओके सर। ये और दूसरा होता है कि इसमें एक से अधिक मल्टीपल हेड्स यहाँ पे ऊपर की तरफ होते हैं, जिसमें हो सकता है एक में अपन हॉरिजॉन्टल रखें, दूसरे को अपन वर्टिकल बना दें। और टेबल काफी लंबी होती है, जैसे आपके यहाँ पे दिख रहा है, एक हेड आपके यहाँ दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए है। इसी प्रकार की मशीन में हम एक दूसरा हेड लगा सकते हैं जो कि वर्टिकल हेड होगा इस टाइप का। ठीक, तो वो हो जाती है फिर ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ सेकंड का टाइम अपने पास बचा हुआ है, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर देना अपनी अपनी। थैंक यू। ओके सर। अच्छा ठीक। ओके बेटा, एंड कर रहा हूँ मीटिंग बेटे मैं। थैंक यू सर। ओके बेटा। ठीक है।